Hello everybody, so welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the first MCQ of applications of derivative. In previous video lecture we completed the total theoretical part of applications of derivative. Actually there are 7 articles in the topic, but 3 articles are already skipped. So only 4 articles we have to taking some MCQs on that 4 articles. That first is geometrical applications of derivative. Second is related rates and rate measure. Third is increasing and decreasing function, and the last is maxima and minima. So that are the 4 articles in the topic applications of derivative. We have already completed total theoretical part, that is called synopsis of applications of derivative, in previous video lecture. Okay, so let's start the first MCQ of this topic. And one thing remember, जब तक आप इस टॉपिक का बोर्ड क्लियर नहीं करेंगे, टेक्स्ट बुक क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आप MCQ स्टार्ट मत करो. टेक्स्ट बुक फर्स्ट, बोर्ड पैटर्न फर्स्ट, देन MCQ. दिस इज द बेस्ट वे टू अचीव the goal, the out of marks in the mathematics. Okay, so let's begin with the first MCQ of the topic applications of derivative. So let us see. First example is what? The minimum value of 2x plus 3y when xy is equal to 6. So he has given the function. This is the first example. F of x is, जिसकी हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वही फंक्शन है, दैट इज 2x plus 3y. बट हियर xy is equal to 6 given, x into y is equal to 6, y is equal to 6 by x. So therefore f of x is equal to 2x plus 3y, 3 into 6 by x. Find out f dash of x immediately. 2, 1 by x का minus 1 by x square. This is the first derivative. So for getting maxima and minima, so f dash of x, f double dash of x find करेंगे. 0 minus 18 by x square, 1 upon x square, 1 upon f of x का derivative minus 1 upon f of x का square into f dash of x. The derivative of 1 upon f of x is minus 1 upon f of x square into f dash of x. So this minus into minus plus, 18 2s are 36, 36 divided by x cube. This is f double dash of x, second derivative. For maxima and minima we have to consider f dash of x is equal to 0. 2 minus 18 by x square is equal to 0. जितना स्टेप अवॉइड करोगे उतना वो एग्जाम्पल का सोल्यूशन फास्ट आएगा. सो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी हैव टू कंसिडर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. दिस इज अ 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर इज इक्वल टू 9. द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू आइदर प्लस और माइनस 3. x की वैल्यू प्लस 3 रखो, f डैश ऑफ प्लस 3 इज इक्वल टू 16 बाय 3 का क्यूब 27, 36 बाय 27. f डबल डैश ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू 36 बाय माइनस 27. दिस इज व्हाट? 4 बाय 3. दिस इज माइनस 4 बाय 3. This is greater than 0, this is less than 0. This is minimum point, minima at 3, maxima at minus 3, because it is negative. So this is second derivative test. Second derivative अगर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मिनिमम होता है दैट पॉइंट. फंक्शन डबल डेरिवेटिव अगर निगेटिव है, लेस देन 0, दिस फंक्शन गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -3. हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. सो x इज इक्वल टू 3 पुट करो, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर पुट करो. सो देयरफॉर f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 into 3 6, 18 by 3, 6 plus 6 12 is the answer. So let's see the second example of this. First was second example, देखो first का आंसर 12 आया. Second में क्या है? A ladder 13 meter long is leaning against a vertical wall. So example number 13.
No, example number 2. 13-meter long ladder है. So this is a vertical wall. This is a ladder. This is a distance of bottom of ladder from the wall. Definitely vertical wall means this is a 90 degree here. This ladder is 13 meter long. Distance we consider x from the wall. This is the height of the wall. So if the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate 2 meter per second, means he has given dx by dt, which is 2 meter per second. Then the rate at which the top of the ladder descending down, top of the ladder descend, height का descending rate उन्होंने पूछा है, height का descending rate, means we have to find dh by dt. ये हमारा क्वेश्चन है. So when the bottom is 5 meter away from the bottom is 5 meter. So this is a given data. So this is a पिक्चरल कंसेप्ट ऑफ लैडर. वर्टिकल वाली बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल है बोर्ड का भी, टेक्स्ट बुक का भी और सीईटी का भी. सो बाय पाइथागोरस वी कैन अप्लाई हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस एक्स स्क्वायर. एच का रेट हमें फाइंड करना है. एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस एक्स स्क्वायर. सो डी एच बाई डी टी, the derivative of square root 1 upon 2 root under root 169 minus x square. Derivative of minus x square is minus 2x. This 2 and this 2 cancel. This x is 5, numerator minus 5, divided by under root 169 minus 25. So therefore dh by dt is equal to minus 5 by 12. So 169 minus 24 144, 144 का स्क्वायर रूट 12. दिस इज नेगेटिव बट हमें डिसेंडिंग रेट विच आर फाइंड करना है, तो माइनस बिकम्स प्लस 5 by 12 मीटर पर सेकंड. 5 by 12 x is 1 upon 2 root 169 minus x square. The derivative of x square is minus 2x. 2 gets cancelled. Minus 5 by 12. Correct answer. Minus 5 by 12 meter per second. One 169 minus x square. 169 minus x square is 25. 169 minus 25 144. 144 का स्क्वायर रूट 12. The ladder at the top of the ladder descending down, this distance is y. Five meter, 2 meter. हाँ exactly. So x square का डेरिवेटिव dx by dt with respect to time. dx by dt is 2. So it's a minus 10. It's a 2. Minus 10 by 12. So minus 10 by 12 is minus 5 by 6 meter per second. Descending rate, that's why plus 5 by 6 meter per second. So what is exactly mistake here? So this is a derivative of x with respect to time dx by dt. X is a distance of ladder from the wall. So uska differentiation dx by dt, which is given 2. So answer is what? 5 by 6. So this is the solution of example number 2. Okay. So 5 by 6 option कितना है? B है. Now look at the third, fourth and fifth after completion of first two. Now third, fourth and fifth हम लेंगे अब. So let's see the example number 3rd. So example number 3rd. The slope of normal to the curve. Slope of normal. Curve is parametric form. X is equal to a sec theta. Y is equal to a tan theta. Theta is given pi by 6.
So remember one thing, dy by dx, that is the rate of change of the curve with respect to x. The derivative of curve with respect to x, that is the slope of tangent, minus 1 upon dy by dx. Minus 1 upon dy by dx, this is the slope of normal, or minus dx by dy. So this is the slope of normal. So हम फाइंड करेंगे माइनस dx by dy डायरेक्टली. Minus a, the derivative of sec theta is sec theta into tan theta. Derivative of tan theta is sec square theta. This sec theta and this sec theta cancel, a cancel, minus tan theta means sin theta by cos theta. Sec theta is 1 by cos theta. So cos cancel, minus sin theta. What is theta? Pi by 6. Sin 30 degrees pi by 6. Sin 30 degrees minus 1 by 2. So what is option of third is minus 1 by 2. So D is the answer. Is it clear? So this is the third question. Now fourth and fifth. इसके बाद fourth and fifth करेंगे. Fourth and fifth के लिए बहुत simple है. Read the fourth number question. The equation of tangent to the curve. What is the equation of tangent? X square plus xy plus y square is equal to 3. And that touching point is 1 comma minus 1, 1 comma 1. हमें फाइंड करना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. जो टचिंग पॉइंट है वो पॉइंट दोनों भी कर्व सेटिस्फाई करता है. टेंजेंट भी सेटिस्फाई करेगी और कर्व भी सेटिस्फाई करेगा. सो 1 comma 1 यहाँ पर एक रखो. 1 plus 1 कितना आता है? 3 आता है. बिकॉज दैट इज सिंगल पॉइंट. टचिंग पॉइंट सिंगल ही होता है. अगर दो पॉइंट तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन टेंजेंट का मीनिंग क्या है? टचिंग लाइन. सो एक ही पॉइंट रहेगा, वो पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए. लाइन मीन्स टेंजेंट. सो कर्व को तो सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन ए बी सी डी रीड करो. ये ऑप्शन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है. 1 माइनस 1 3 नहीं आ सकता. बी ऑप्शन 1 प्लस 1 3 नहीं आ सकता. सी ऑप्शन 1 माइनस 1 2 भी नहीं आ सकता. डी ऑप्शन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. सो दिस ऑप्शन सेटिस्फाई because 1 plus 1 कितना है? 2 है. So this is option number D, because that point satisfy both curve and the tangent. Is it clear? So only D option satisfy the point. So that D option is what? X plus y is equal to 2. Look at the example number 5. If the line, so this is line, touches the curve. So ये tangent है. This is tangent. कर्व क्या है? y क्यूब, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b. एंड पॉइंट है 1 कॉमा माइनस 1. सेम प्रोसीजर. ये पॉइंट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा. दिस लाइन इज अ टचिंग लाइन, मीन्स टेंजेंट है. 1 माइनस 1 कितना है? 0. x होता है, ये y होता है. 1 माइनस 1 0, माइनस 1 स्क्वायर 1, 1 क्यूब 1. सो वो इक्वेशन क्या आगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 1. a प्लस बी इज इक्वल टू 1. चारों ऑप्शन में कौन से वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे ए बी का, वो चेक करना है. दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रायल एंड एरर मेथड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल. 2/3 माइनस 1/3, 1 नहीं आ सकता. 2/3 माइनस 1/3 कितना आता है? 1/3 आता है. बी ऑप्शन क्या है? माइनस 2/3 प्लस 1/3 माइनस 1/3 आता है, सेटिस्फाई नहीं करेगा. सी ऑप्शन देखो क्या है? 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू कितना? 1. 2/3 प्लस 1/3 3/3. सो ए इज इक्वल टू 2/3, बी इज इक्वल टू 1/3. ये दो वैल्यू, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. सो दिस इज द मेथड विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल. अगर रेगुलर मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा. पॉइंट निकलना है, ये भी फाइंड करना है. पॉइंट तो दिया, ये भी फाइंड करना है. सो दिस ट्रायल एंड एरर मेथड इज़ वेरी वेरी यूजफुल. द एक्चुअल थ्योरी इज व्हाट? कौन सा भी कर्व है उसको जो टचिंग लाइन है उसको हम टेंजेंट कहते हैं. एक ही पॉइंट में टच करेगा, वो पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा और वो टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा. सो दिस इज एक्चुअल द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस. ओके, सो 3 4 5 हो गए. 3 4 एंड 5. 4 5 तो हमने ट्रायल एरर मेथड से सॉल्व किए. सो लेट अस सी द एग्जांपल नंबर 6 7 8 नाउ. Example number 6, example number 7, example number 8, back to back 3 examples.
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 6, 7, 8, ये देखो 6 क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1। वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस c, सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना है। t is 1 given, 3 minus 6 plus 6 0, 3 is the only answer. So option C is the correct answer. बहुत simple है, velocity means what? The rate of change of displacement with respect to time. Example number 7. The sum of two natural number is equal to 10. If their product is maximum, product x into y is maximum, ये फंक्शन है, ये गिवन पार्ट है। मैक्सिमा मिनिमा से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको नियर अबाउट 10 से 12 स्टेप का सॉल्यूशन बन जाएगा ये, तो नियर अबाउट 3 to 4 मिनट लगता है इसको। सो टू अवॉइड सच लेंथी कैलकुलेशन जस्ट यूज द हेड, यूज द लॉजिक। सो देखो पहला ऑप्शन क्या है 5, नेक्स्ट क्या है 6, 4, उसके नेक्स्ट 3, 7, 7, 3। डी ऑप्शन नन ऑफ दिस से हम 8, 2 लेंगे। सबकी सम 10 आती है, 10, 10, 10 और इसका भी 10 आता है। एक्चुअली दिस इज नॉट गिवन, इट इज नन ऑफ दिस, बट ये दोनों का प्रोडक्ट 5, 5 जा कितना 25, 6, 4 जा 24, 7, 3 जा 21, 8, 2 जा 16। मैक्सिमम प्रोडक्ट कौन से नंबर का है 5, 5 का। सम 10 होना चाहिए और प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, ओनली ए ऑप्शन सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सो दैट इज व्हाट 5, 5। सम 10 आती है, प्रोडक्ट 25, मैक्सिमम अमॉन्ग दिस ये मैक्सिमम है। ओके, so this is the completion of example number 7. now example number 8. example 8 क्या है देखो, the point on the curve, point find करना है, y is equal to 3x minus x square, where slope of tangent is minus 5. इसका dy by dx निकालेंगे, dy by dx is equal to 3 minus 2x and dy by dx is nothing but what? slope of tangent. dy by dx क्या होता है? slope of tangent होता है, which is given minus 5. So minus 2x is equal to minus 8, x is equal to 4. x की वैल्यू कितनी आ गई 4. सो ए बी सी डी ऑप्शन में सिर्फ ए ऑप्शन का x की वैल्यू 4 है, y निकालने की जरूरत नहीं, निकाल सकते आप। 4 3 are 12 minus 16 minus 4. सो व्हाट इज आंसर 4, -4, ये ऑप्शन। बट यहाँ पर भी लॉजिक लगाओ, x की वैल्यू 4 आई है, वो 4 ऑप्शन में सिर्फ ए ऑप्शन की ही है। सो डोंट वेस्ट द टाइम, डोंट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 8, 6, 7, 8. नाउ 9, 10, 11 बैक टू बैक लेंगे, 9, 10 एंड 11. Now let's see the example number 9, 10 and 11. So what is example number 9? So same agar, so that is a trial and error method, equation of tangent to the curve, x square plus xy plus y square is equal to 3. Point is 1, 1, 1 plus 1 plus 1 3. ये ऑप्शन x plus y plus 2 is equal to 0, 1 plus 1 2 plus 2 4 आता है, 0 नहीं आ सकता, 2 minus 1 minus 1 0 plus 2 2 आएगा, बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। सिर्फ सी ऑप्शन देखो, ये सेटिस्फाई करेगा पॉइंट, x plus y minus 2 is equal to 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 1 plus 1 2, 2 minus 2 कितना है 0। ओनली सी ऑप्शन which is equation of tangent which satisfy this point, so that's why this is the answer. Example number 10, the slope of tangent. Slope of tangent find करना, x is equal to t square plus 3t minus 8, y is equal to 2t square minus 2t minus 5. So what is dy by dx? 4t minus 2, differentiation of y in the numerator, differentiation of x in the denominator.
2t plus 3, t is I think 1, t 2 है, एग्जाम्पल नंबर 10 t 2 है, 8 minus 2 6, 4 plus 3 7, so 6 by 7 this is the slope of tangent, ऑप्शन क्या है D, 10 का ऑप्शन कितना है D है। अब और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम्पल नंबर 11, यहाँ पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, dy बाई डी एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, पॉइंट इज गिवन 3, 1 बाई 3, सो सिर्फ x ही पुट करना है यहाँ पर, माइनस 1 बाई 9, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऑप्शन ऑफ 11 इज व्हाट B। सो ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ 9, 10 and 11. Now look at the 12, 13 and 14. Now let's see the example number 12, 13 and 14. So in example number 12, read the example, we have to find the equation of tangent. बहुत ही simple example ये भी, equation of tangent to the curve y is equal to 4 times x into e raised to x. So dy by dx पहले slope of tangent find करेंगे, u into v, u into derivative of v plus v into derivative of u, e raised to x common, x plus 1, this is a slope of tangent, x is given, I think x is minus 1, x is minus 1, y is minus 4 by, x की वैल्यू minus 1 रखो, it is a 0, so dy by dx is 0, y minus y1 is equal to dy by dx into x minus x1, this term 0, y is equal to minus 4 by e, this is answer. So y is equal to minus 4 by e, this is the equation of tangent, because slope कितना आ गया, 0 आ गया, slope of tangent कितना है, 0 है। So look at the example number 13, बहुत simple example है, start के example 13 देखो क्या है, a particle is moving along a curve is what, 8y is equal to x cube plus 8, then the point on the curve at which, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 8 dy by dt सॉरी, 3x square dx by dt plus 0, so y coordinate is changing 6 times as fast as x coordinate, means dy by dx कितना है, 6 times, dy by dt सॉरी, dy by dt is 6 times dx by dt है, so this is given, यहाँ पर रखो 8 into 6 dx by dt is equal to 3x square dx by dt, this term eliminate, 3x square 48, x square is equal to 16, x is equal to plus or minus 4, so x के दो वैल्यू मिल गए, मीन्स डेफिनेटली y की भी दो वैल्यू मिल जाएंगे, हमें पॉइंट फाइंड करना है, एट व्हाट पॉइंट, देन द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज फास्ट एज 6 टाइम्स द एज फास्ट एज x चेंजिंग, सो x की वैल्यू प्लस और माइनस 4 है, तो ऑप्शन सिर्फ B में x की वैल्यू प्लस 4 माइनस 4 है, सो y की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ अ लॉजिक से ही आपको MST CET क्रैक करना है, मैथमेटिक्स क्रैक करना है, रैंडमली मत सॉल्व करो इसको। बी ऑप्शन में x की वैल्यू 4 9 है, माइनस 4 माइनस 7 है, सो ओनली बी ऑप्शन वेयर x values of x are 4 and minus 4, so no need to find the values of y. So this is the completion of 13. now 12 13 अब 14 देखो, 14 भी लॉजिक से सॉल्व करेंगे। Example number 14. If we divide 100 into 2 parts, 100 के दो पार्ट करना है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, दो पार्ट की सम 100 है
and the sum of their square is minimum. So ये ऑप्शन 50-50 है, बी ऑप्शन 20-80, सी ऑप्शन 70-30. सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसमें मिनिमम किसकी है? 25 प्लस 25, 2500 प्लस 2500, 50-100, 4 आई 50, 2500, 2500 प्लस 2500, 5000, इसकी 400 प्लस 6400, ये 2100 प्लस 900, इसकी 3000, इसकी 6800, ये 50-100, 6800, 3000. इसमें से मिनिमम क्या है? 30. मिनिमम तो यही है. सो 7, 7 का स्क्वायर 49 है, सो ये 58 हो जाएगा. सो वही गलती है. सो किसकी सम मिनिमम है? सम ऑफ देयर स्क्वायर इज व्हाट? ये ऑप्शन करेक्ट है. सो दिस इज लॉजिकली बहुत सिंपल है. सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम अमॉन्ग्स दिस. ये 500 है, 50-100 है, 5000, 6800, 5800. इसमें सबसे कम कौन सी है? यही है. सो ऑप्शन ऑफ 14 इज व्हाट? ए. नाउ 15, 16, 17 करेंगे बैक टू बैक दिस 3 एग्जाम्पल्स. Look at the example number 15. The maximum value of, ये भी हम लॉजिकली सॉल्व करेंगे. y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x. अभी मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? रेगुलर प्रोसीजर इज व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट y डैश, देन y डबल डैश. फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम y डैश इज इक्वल टू 0 कंसिडर करो. उसके बाद उसको आगे सॉल्व करना है. जो भी दो वैल्यू आएंगी एफ डबल डैश में पुट करो, आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. इफ इट इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज मिनिमम, इफ इट इज लेस देन 0 फंक्शन गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू. दिस इज द प्रोसीजर. बट ये एग्जांपल ऐसे सॉल्व करेंगे. y इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन एक्स. सो दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसको हम कॉस अल्फा कंसिडर करेंगे, कॉस अल्फा कॉस एक्स. इसे हम साइन अल्फा कंसिडर करेंगे, साइन अल्फा साइन एक्स. नाउ दिस बिकम्स अ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला. सो दिस इज अ कॉस अल्फा माइनस एक्स, cos alpha minus x or x minus alpha to be same, cos alpha minus x. cos का alpha minus x का x minus alpha का to be same होता है. So this y becomes maximum when this is 1 because cos की सबसे maximum value कितनी होती है? 1 होती है because cos का रेंज क्या है? -1 to +1 है. So that is -1 is the upper limit, +1 is upper limit and -1 is the lower limit. So cos x gives the maximum value 1. So this is 1. उसकी ज़्यादा और वैल्यू हो ही नहीं सकती. So what is y maximum? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये उसका आंसर. 15 का आंसर क्या है? डी ऑप्शन. 15 का डी ऑप्शन. Now look at the example number 16. What is example number 16? xy is equal to c square. The minimum value of xy plus by, ax plus by
So this implies y is equal to what? C square by x. So ax plus b c square by x. This is f of x. अब f dash of x इसको रेगुलर मेथड से सॉल्व करेंगे. ax का a, दिस इज माइनस bc square by x. bc square by x square. The derivative of 1 by x minus 1 by x square. So इसी को हम 0 कहेंगे. a minus bc square by x is equal to 0 x square. ax square is equal to bc square. x square is equal to bc square by a. x is equal to plus or minus c under root b by a. मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करना है. सो इसकी डबल डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत नहीं. फाइंड करेंगे आप डबल डेरिवेटिव. अब डबल डैश ऑफ एक्स 0 प्लस 2bc स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. बड़ा सॉल्यूशन है. ऐसे कुछ एग्जांपल इसको रेगुलर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा. एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड का मैक्सिमा मिनिमा का प्रोसीजर है. और इम्पॉर्टेंट, जब तक आप बोर्ड के लेक्चर मेरे फॉलो नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तब तक ये कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा. बहुत स्पीड से करना पड़ता है. y इज़ वाट सी स्क्वायर बाई एक्स. यहाँ पर y की वैल्यू रखी जिसकी मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू फाइंड करना है, उसी को फंक्शन कंसिडर करेंगे. सो y सी स्क्वायर बाई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 2 बाई एक्स क्यूब प्लस 2 बाई एक्स क्यूब, a का 0 प्लस 2bc स्क्वायर बाई एक्स क्यूब. सो x की वैल्यू प्लस रखेंगे पहले. x इज इक्वल टू c अंडर रूट b बाई यहाँ पर f डबल डैश ऑफ x. सो 2bc स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, इसका क्यूब c क्यूब. सो b रूट 3 टाइम्स b बाई into under root b by. So this b and this b cancel, c square cancel. ये ऊपर जाएगा 2a divided by c under root b upon under root a. root a ऊपर जाएगा. So 2a root a divided by c root b. This is positive greater than 0 मीन्स वैल्यू मिनिमम आएंगी. हमें क्या फाइंड करना है? मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. तो यही वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में. सो एफ ऑफ एक्स ax ac अंडर रूट बी अंडर रूट ए प्लस बी वाई बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स इज दिस सी अंडर रूट बी या रूट ए ऊपर का नीचे गया. सो ए सी और ए सी कैंसल. ए अपॉन रूट ए इज रूट ऊपर जाएगा c रूट ए बी. b अपॉन रूट बी इज रूट बी प्लस c रूट ए बी. इट इज अ ट्वाइस रूट ए बी. ये आंसर आ सकता है. ट्वाइस रूट ए सी यहाँ पर 2c रूट ए बी. सो बी ऑप्शन बड़ा सॉल्यूशन है. प्रोसीजर क्या है? दिस इज गिवन. इससे एक y की वैल्यू c स्क्वायर बाई एक्स. ये फंक्शन है ax प्लस बी वाई. वाई की जगह पर c स्क्वायर बाई एक्स. फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज 0 लिखना है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करो. x की 2 वैल्यू मिलेंगी. एक वैल्यू पॉजिटिव ली, दूसरी वैल्यू निगेटिव लेना था लेकिन नहीं ली. बिकॉज why? Because second derivative positive means if second derivative is greater than 0 it means this function gives the minimum value. function minimum value इसी पॉइंट पे मिलने वाला है. so second find करने की जरूरत नहीं पड़ी. so only this gives the function gives the minimum value at x is equal to c root b by a. so x की वैल्यू c root b by a ये फंक्शन में रख दी मैंने. दिस इज अ फंक्शन. सॉल्व किया, ये उसका आंसर. सो दिस इज द ऑप्शन नंबर बी ऑफ एग्जाम्पल नंबर 16, MCQ नंबर 16. ओके, नाउ 17. इन 17 एग्जाम्पल शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे. 17 एग्जाम्पल.
एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज टचिंग लाइन मीन्स टेंजेंट है ये। आई थिंक ये एग्जाम्पल मैंने अभी लिया है, एक्स क्यूब प्लस बी 1 कॉमा -1। सो इसका ऑप्शन 4/3 2/3। देखो 1 - 1 0 सेटिस्फाई करेंगे, x की वैल्यू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, ये हुआ नहीं है, अलग है ये। a प्लस बी इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, 2 इज इक्वल टू a प्लस बी। देखो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है ये चेक करना है। 4/3 प्लस 4/3 इट इज़ 8/3, 8/3 इज रॉन्ग, इट इज़ 2 आता है, ये ऑप्शन रॉन्ग। 4/3 प्लस 2/3 बी ऑप्शन, 4/3 प्लस 2/3 6/3, 6/3 इज 2, सो बी ऑप्शन सेटिस्फाई। ए इज इक्वल टू 4/3 एंड बी इज इक्वल टू 2/3। ये 4/3 प्लस 2/3 6/3, 6/3 कितना है 2 है, सो बी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 17। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस 17 MCQs। कोई भी अगर डाउट है तो मुझे यूट्यूब पे मैसेज करो, कमेंट करो, नहीं तो मुझे मैसेज करो, आई विल गिव द नंबर ऑन दैट। सो ये आंसर बन गया है बी 17 का। ओके, नाउ लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 18, 19 एंड 20। 20 एग्जाम्पल तो हमारा टारगेट है। So last 3 examples of today's video lecture, that is 18, 19 and 20. So what is example number 18? Read it carefully. He has given the function f of x. f of x is x cube minus 3x square plus 3x plus 7. So this function has maximum value, minimum value at x is equal to 1. सो ये डिपेंड करता है सेकंड डे टू टेस्ट पे। फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, फंक्शन मिनिमम कब होता है, दिस इज एब्सोल्यूट डिपेंड्स ऑन द सेकंड डे टू टेस्ट। सो पहले हम एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इसका डबल डेरिवेटिव 6x माइनस 6। x की वैल्यू 1 रखो, एफ डैश ऑफ 1, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। If second derivative is 0, this function neither maximum nor minimum at x is equal to 1. So at x is equal to 1, this function gives neither maximum value nor minimum value. सेकंड डेरिवेटिव आइदर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 0 होना चाहिए। एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो निगेटिव होना चाहिए, बट 0 नहीं। इफ इट इज 0, देन वी से दैट डायरेक्टली दिस फंक्शन गिव्स neither maximum value nor minimum value. So what is the option of second 18 का कितना आंसर है? सी ऑप्शन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 19। 19 रीड करो क्या है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू t प्लस 1/t, y इज इक्वल टू t माइनस 1/t, t इज इक्वल टू 2। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। ओके, पहले dy/dx फाइंड करेंगे। 1 माइनस 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 प्लस 1/t स्क्वायर, 1 माइनस 1/t स्क्वायर। सो न्यूमरेटर t स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर t स्क्वायर माइनस 1। 2 रखो, 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 3। So this is dy/dx. dy/dx at t is equal to 2. 4 plus 1 5, 4 minus 1 3. So point find करेंगे। 2 रखो, x is equal to 2 plus 1/2. It's a 5/2. y is equal to 2 minus 1/2. 4 minus 1 3/2. So this is point. y minus 3/2, स्लोप आया अपना 5/3, x माइनस 5/2। दिस इज अ पैरामीटर, यहाँ पर रखो t की जगह पर 2, यू विल गेट द पॉइंट 5/2 एंड 3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 2y माइनस 3/2, 5 इंटू
2x minus 5 by 2. This 2 and this 2 cancel. 6y minus 9 is equal to 10x minus 25, and this gives 10x minus 6y minus 9 here plus 9 minus 25 plus 9 minus 16 is equal to 0. So throughout 2 से डिवाइड करो, 5x minus 3y minus 8 is equal to 0. This is equation of tangent. 5x minus 3y minus 8 is equal to 0. ऑप्शन क्या है? डी है. देखो अभी सेम प्रोसीजर है. x is given, y is given. Problem is what? He has given in parametric form. At t is equal to 2. So 2 plus 1 by 2, 5 by 2. 2 minus 1 by 2, 3 by 2. This is the point, 5 by 2 and 3 by 2. ये अपना पॉइंट है. dy by dx फाइंड किया, पैरामेट्रिक फॉर्म है तो टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1. ये फास्ट करना है, इसका कैलकुलेशन टी पुट करो 5 by 3. दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट. y minus y1 is equal to dy by dx x minus x1. दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला. y minus y1 is equal to m into dy by dx into x minus x1. स्लोप पॉइंट फॉर्म कैलकुलेशन करो, ये आंसर बन जाएगा. ओके, ये स्पीड में आना चाहिए. दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 19. नाउ लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज 20. In example number 20, if the circumference of circle changes at the rate, circumference of circle, that is c 2 pi r. Example number 20. dc by dt, circumference of circle is changes at the rate 0.2 centimeter per second. Then the rate at which its area is changing, हमें एरिया का रेट फाइंड करना है, dA by dt. When radius is 8 centimeter, radius x is equal to, क्यों r is equal to, x लिखो r लिखो to be same. x is equal to कितना है, x is equal to r is equal to 8 centimeter. अभी गिवन है 2 pi r. इसका रेट ऑफ चेंज dc बाई dt 2 पाई dr बाई dt. dc कितना है 0.2, 2 पाई dr बाई dt. सो dr बाई dt कितना है, dr बाई dt इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाई 2 पाई. ये dr बाई dt आ रहा है. What we have to find? We have to find the rate of change of area with respect to time. What is the formula of area of circle? Pi r square. उसका रेट dA by dt. ये pi as it is r square का 2r dr by dt. The derivative of r square with respect to time 2r into dr by dt. A 2 pi. What is r? 8. What is dr by dt? 0.2 divided by 2 pi. ये 2 pi cancel. 1.6 centimeter square per second. This is a rate of change of its area. 1.6 centimeter square per second. बहुत सिंपल है. रिलेटेड रेट्स हैं. Circumference of circle 2 pi r. Area of circle 2 pi r square. So circumference का rate of change 0.2, circumference of circle 2 pi r, उसका rate dc by dt 2 pi into dr by dt. ये आपने dr by dt फाइंड की मैंने. डोंट सॉल्व इट, इसको सिंप्लीफाई मत करो, ऐसे रहने दो. बाद में हमें एरिया का रेट फाइंड करना है. सो एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर. उसका रेट डी ए, रेट मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. पाई एज इट इज आर स्क्वायर का 2r, आर का डी आर बाई डी टी. So this is answer 1.6 centimeter square per second. This is the option number C of example number 20. Okay. So target completed, mission completed of first 20 example of each lecture. So पहले lecture का 20 MCQs हुआ. I hope you understand all the 20 MCQs. Read it carefully, listen very carefully. All the word you should catch. मेरे हर एक लफ्ज़ आपको कैच करना है, तभी पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा.
ये जो सब मैं स्पीड से सॉल्व करके दे रहा हूँ, ये रिलेटेड रेट्स के आपको हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। वॉच द वीडियोज़ ऑफ यूट्यूब चैनल, दैट इज़ व्हाट, बोर्ड पैटर्न की वीडियोज़ मेरे फॉलो करो, वॉच करो, देखो, आपको हर चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन होंगी। सो दिस इज़ द सफिशिएंट ऑन दिस first lecture of MCQs of applications of derivatives. In previous lecture we completed the synopsis of this topic. Okay, so for next MCQs, for more solution of more MCQs, stay tuned on this YouTube channel Math Mentor. So today I will stop here. Thank you very much and stay home and stay safe. Okay, thank you.